مشکل وقت میں سعودی عرب اور عوام کے لیے پاکستان کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار۔ سعودی عرب پر حالیہ حملوں کی پاکستان کی شدید مذمت کا اعادہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان ہمیشہ مملکت اور سعودی عرب کے برادر عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ وزیر اعظم کا فوری طور پر جنگ کے خاتمے اور علاقائی صورتحال مستحکم بنانے اور کشیدگی کم کرنے اور اختلافات کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر زور۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کے امن کی کوششوں کو سراہا۔ دونوں ممالک کے درمیان ہر سطح پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان کا مشرق وسطی میں جاری بحران کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی کوششوں کا خیر مقدم۔ امریکہ اور ایران کی رضامندی سے مشروط پاکستان بامعنی اور نتیجہ خیز مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ مذاکرات کی میزبانی کرنا پاکستان کے لیے باعث اعزاز ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ایکس پر بیان۔ پاکستان کی مصالحتی کوششوں کا عالمی سطح پر اعتراف۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی مشرق وسطی میں جاری بحران کے حل کے لیے بامعنی مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم کے بیان کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کر دیا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ اس بار ہم درست لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایران سمجھداری کا مظاہرہ کر رہا ہے، ایٹمی ہتھیار نہ بنانے پر آمادہ ہے۔ مارکو روبیو، اسٹیو وٹکوف اور نائب صدر جے ڈی وینس ایران کے معاملے پر متحرک ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ The Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif has just posted on X saying Pakistan welcomes and fully supports ongoing efforts to pursue dialogue to the end of war in the Middle East in the interest of peace and stability in the region and beyond. امن کا دائی پاکستان ایک بار پھر پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ مشرق وسطی میں جاری بحران کے حل کے لیے پاکستان کا کلیدی کردار۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے مذاکرات کی میزبانی کے بیان کو عالمی میڈیا میں بطور بریکنگ نیوز نشر کیا گیا۔ امریکی میڈیا میں وزیر اعظم پاکستان کے مصالحتی کردار کی تعریف۔ پاکستان مشرق وسطی کے تنازع کے لیے ثالثی اور مذاکرات کے لیے پرعزم۔ مشرق وسطی کی جنگ کے خطے پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ حالیہ صورتحال میں حکومت اور پاک فوج کا اہم کردار ہے۔ ہم حکومت کی تمام کاوشوں میں ساتھ ہیں۔ خطے کی صورتحال میں پوری قوم ذمہ داری کا ثبوت دے رہی ہے۔ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کی مرکزی کمیٹی کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ پاکستان کی آسیہ اندرابی، فہمیدہ صوفی اور ناہیدہ نسرین کی سزاؤں کی مذمت۔ فیصلہ کشمیری قیادت اور حق خودارادیت کی آواز کو دبانے کی کوشش قرار۔ عدالتی فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے منافی اور بنیادی انسانی حقوق کی مسلسل پامالی کی عکاسی ہے۔ سزاؤں سے منصفانہ ٹرائل، عدالتی خود مختاری، عالمی انسانی حقوق کے تقاضوں پر سنگین سوالات اٹھتے ہیں۔ پاکستان کا اقوام متحدہ اور عالمی انسانی حقوق تنظیموں سے معاملے کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ اسپین میں غیر قانونی تارکین وطن کو قانونی حیثیت دینے کے لیے رجسٹریشن کے آغاز سے قبل پاکستانیوں کو پاسپورٹ اور دیگر کاغذات ایک ہفتے میں جاری کیے جائیں گے۔ اسکیم سے دیگر ممالک کے علاوہ تقریباً 15,000 پاکستانی فائدہ اٹھائیں گے۔ وفاقی وزراء محسن نقوی اور صادق حسین کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں اہم فیصلے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پاسپورٹ کا جلد اجرا اولین ترجیح ہے۔ کسی مجرم یا مطلوب ملزم کو ہرگز پاسپورٹ جاری نہ کیا جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت۔ پاکستان کو علاقائی ٹرانس شپمنٹ مرکز بنانے کے لیے کاروبار دوست ماحول ناگزیر۔ مسابقتی بندرگاہی ماحول سے پاکستان تجارتی مواقع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وزیر بحری امور محمد جنید انوار چودھری کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس میں غیر ملکی کارگو کی ٹرانس شپمنٹ بڑھانے کے لیے حکمت عملی کا جائزہ۔ وزیر بحری امور کی بندرگاہوں پر سہولیات میں تیزی سے اضافہ کرنے کی ہدایت۔ حکومت سندھ کی جانب سے کفایت شعاری اقدامات پر عمل درآمد جاری۔ مزید اہم فیصلے متوقع۔ سندھ کابینہ نے 3 ماہ کی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سرکاری گاڑیاں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ اقدامات کا مقصد ایندھن کی بچت اور ممکنہ مہنگائی کے اثرات سے بچنا ہے۔ عوام کے تعاون سے ہی ایندھن کی بچت اور توانائی کے ذخائر کا تحفظ ممکن ہے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن۔
हुकूमत पंजाब किसानों को सहूलियात की फराहमी के लिए पुरज़्म। 2 साल में काश्तकारों को 30,000 ट्रैक्टर मिल गए। मज़ीद 10,000 ट्रैक्टर्स की फराहमी जारी। काश्तकार मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत हाई पावर ट्रैक्टर और दीगर मशीनरी भी हासिल कर सकेंगे। काश्तकारों को 4 अरब रुपए की लागत से 5,000 सुपर सीडर भी मिल गए। राइस सुपर सीडर के इस्तेमाल से स्मॉग के खात्मे में मदद मिलेगी। पंजाब के काश्तकार को मैकेनाइजेशन के जरिए जदीद फार्मिंग पर गामजन कर रहे हैं मरियम नवाज। पाकिस्तानी सिफारतकारी के आगे भारतीय खारजा पॉलिसी चारों शाने चित। भारतीय जरीदे द वायर का एतराफ। पाकिस्तान ने मोदी सरकार को हर मुहाज पर शिकस्त दे दी। वाशिंगटन ने दिल्ली की जगह इस्लामाबाद की मशरिक़ वस्ता में अहमियत को तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान की अमली सिफारतकारी ने भारत को पिछाड़ दिया। पाकिस्तान अमरीका ईरान के दरमियान अहम तरीन सालिस बनकर उभरा। भारत की पाकिस्तान को तनहा करने की हिकमत अमली नाकाम। अमरीका भारत को महज कमजोर खिलाड़ी समझता है, सालिसी के लिए पाकिस्तान पर इन्हिसार करता है। पाकिस्तान हमेशा सिफारतकारी के जरिए मसाइल के हल का कहा। इसराइली जारहियत पर सख्त तशवीश का इजहार। फलस्तीनी अवाम पर इसराइली हमलों की मजम्मत। इसराइल ने गजा पर वहशियाना बमबारी की। खवातीन और बच्चों समेत हजारों फलस्तीनी शहीद और जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल के मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक़ इजलास के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। नाअहल मोदी की नाकामी और मुनाफिकाना खारजा पॉलिसी पर अपोजिशन लीडर भी सीख पा। नाक़िस सिफारतकारी पर पूरे भारत को अंदरूनी और बैरूनी सतह पर हजीमत का सामना। अमरीकी सदर भारतीय वज़ीर आज़म को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हमारा वज़ीर आज़म कॉम्प्रोमाइज्ड है तो इसका मतलब है कि भारत की खारजा पॉलिसी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी। मोदी की ईरान के खिलाफ इसराइल नवाज पॉलिसियों के बायस आज पूरा भारत गैस और पेट्रोल के बहरान से दो चार। गरीब तबका दोबारा लकड़ी और कोयला जलाने पर मजबूर। एक वक्त के खाने के लिए चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया। इंडियन अवाम की पेट्रोल के हुसूल के लिए तवील कतारें। खलीज टाइम्स। दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती और इंसानी हकूक की पामाली। अफगान तालिबान रजीम का सफाक चेहरा बेनकाब। इंतहा पसंदाना पॉलिसीज के बायस दुनिया भर के लिए नाकाबिल कबूल। जाबिराना कवानीन अफगान शहरियों की बुनियादी हुकूक और मुस्तकबिल के लिए संगीन खतरा। शिद्दत पसंद और गैर जमहूरी पॉलिसीज के बायस अफगानिस्तान आलमी सतह पर तनहा इक्तसादी और इंसानी बहरान का शिकार है। माहिरीन। PSL 11 का हर मोमेंट है वायरल होने वाला 11 होने वाला। अरे स्मिथ भी तो है आने वाला और मुल्तान का भी कमबैक है होने वाला। अरे होने वाला वाला गारा होने वाला हो अरे होने वाला वाला गारा होने वाला वाला गारा होने वाला। पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज में एक दिन बाकी। मैचेस कल से 3 मई तक लाहौर और कराची में होंगे। इंटरनेशनल खिलाड़ियों की आमद और टीमों की तैयारियां जारी। इफ्तिताही मैच हैदराबाद किंग्समैन और लाहौर कलंदर्स के दरमियान लाहौर में होगा। सनसनीखेज मुकाबले PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। 11 होने वाला है और आला होने वाला है। PSL मैचेस के लिए PTV स्पोर्ट्स के खुसूसी इंतजामात। माहिरीन का बेहतरीन पैनल तश्कील। प्री और पोस्ट मैचेस के अलावा इनिंग्स ब्रेक में भी दिलचस्प तज्जिए और तबसरे पेश किए जाएंगे। कमेंट्री बॉक्स से हर बॉल के साथ जोश, हर चौके छक्के पर शोर और हर विकेट पर तफसीली तज्जिया भी PTV स्पोर्ट्स पर। सात मराहिल पर मुश्तमिल साइकिलिंग टूर वोल्टा आ कातालोनिया। दूसरा मरहला डेनमार्क के मैग्नस कोट नेल्सन के नाम रहा। नेल्सन ने 167.4 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 45 मिनट 28 सेकंड्स में तय किया। फ्रांस के नोआ इसिदोर ने दूसरी और इटली के फ्रांसेस्को बुसातो ने तीसरी पोजीशन हासिल की। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 11 जून से होगा। वर्ल्ड टूर पर मौजूद ट्रॉफी लॉस एंजलिस पहुंच गई। इटली के लेजेंडरी फुटबॉलर एलेसेंड्रो डेल पेरो ने भी नुमाइश में हिस्सा लिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका के मुश्तरका मेजबानी में खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच में मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका की टीमें मद्दे मुकाबिल। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया खान।
کھیلوں کی خبروں میں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اپنی گرمجوش اور خوشگوار گفتگو کے دوران وزیر اعظم نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور سعودی عرب کے برادر عوام کو عید الفطر کی دلی مبارکباد پیش کی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی وزیر اعظم کو عید کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب پر حالیہ حملوں کی پاکستان کی شدید مذمت کا اعادہ کیا اور ایک بار پھر اس مشکل وقت میں مملکت اور اس کے عوام کے لیے پاکستان کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا۔ موجودہ بحران میں غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کرنے پر سعودی عرب کی قیادت کو سراہتے ہوئے وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ پاکستان ہمیشہ مملکت اور سعودی عرب کے برادر عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا، اسی طرح جس طرح انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے فوری طور پر جنگ کے خاتمے اور معمول پر آنے پر زور دیا تاکہ علاقائی صورتحال کو مستحکم کیا جا سکے۔ انہوں نے امت کی صفوں میں اتحاد اور ہم آہنگی پر زور دیا جس کے پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کو تمام فریقین تک پاکستان کی تعمیری سفارتی رسائی کے بارے میں آگاہ کیا، جس میں کشیدگی کو کم کرنے اور اختلافات کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کی امن کی کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے دونوں ممالک کے درمیان ہر سطح پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان عالمی سطح پر امن کا داعی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی میزبانی کرنا پاکستان کے لیے باعث اعزاز ہے۔ تفصیل شیئر کریں گے شیراز دورانی۔ پاکستان نے دنیا بھر خصوصاً خطے میں امن کے لیے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہے۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ کے خاتمے اور پائیدار امن کے لیے اب دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ اس حوالے سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان مشرق وسطی میں جنگ کے خاتمے کے لیے جاری مذاکراتی عمل کا خیر مقدم کرتا ہے اور خطے سمیت دنیا بھر میں امن و استحکام کے فروغ کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان امریکہ اور ایران کی باہمی رضامندی سے بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات کو آسان بنانے کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان جاری تنازع کے جامع اور پائیدار حل کے لیے ممکنہ میزبانی کی پیشکش پر فخر محسوس کرتا ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے خطے میں امن، استحکام اور سفارتی حل کے فروغ کا حامی رہا ہے اور موجودہ صورتحال میں بھی یہی اصولی موقف برقرار رکھا گیا ہے۔ دفاعی اور سفارتی ماہرین کے مطابق پاکستان کی جانب سے یہ پیشکش اس کی متوازن خارجہ پالیسی اور علاقائی معاملات پر گہری نظر کی عکاس ہے۔ پاکستان کا اقدام نہ صرف کشیدگی میں کمی لانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے بلکہ عالمی سطح پر اس کے مثبت اور ذمہ دارانہ کردار کو مزید اجاگر کرے گا۔ مارکہ حق کے بعد جو پاکستان کو سب سے بڑا جو پاکستان کی اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سفارتی سطح پر پاکستان کا جو قد ہے وہ بلند ہوا اور پاکستان کے وقار میں مزید اضافہ ہوا۔ پاکستان نے تو ہندوستان کو بھی ہمیشہ امن کی دعوت دی ہے کہ تنازعات کا حل ہونا چاہیے، اور پاکستان نے تو دیکھیں افغانستان جیسے ملک کے اندر معاملات کی بہتری کے لیے بھی کردار ادا کیا، مگر وہ انسان نہیں بن پا رہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ امریکن وائس پریزیڈنٹ آئیں گے اور پاکستان میں ایران یو ایس موٹ ہونے جا رہا ہے۔ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کی ڈپلومیٹک ہسٹری میں۔ تجزیہ کاروں کا مزید کہنا ہے کہ ایسے وقت میں جب مشرق وسطی میں کشیدگی عروج پر ہے، پاکستان کی جانب سے مذاکراتی عمل کی حمایت اور میزبانی کی پیشکش کو عالمی برادری میں ایک مثبت پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ شیراز دورانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ پاکستان ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش کا پیغام سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ وزیر اعظم کی مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش کو عالمی میڈیا نے بھی بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کیا ہے۔ رپورٹ کریں گے عمر فاروق۔ بات امن پسند ملک کی ہو یا عالمی سطح پر امن کے فروغ کے حوالے سے اقدامات کی تو پاکستان ہمیشہ سر فہرست دکھائی دیتا ہے۔ مشرق وسطی میں جاری بحران کے خاتمے کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مذاکراتی عمل میں کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے، جسے سفارتی سطح پر ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پیغام شیئر کیا۔ امریکی صدر کی جانب سے وزیر اعظم کا ایکس پر جاری کیا جانے والا پیغام شیئر کرنا پاکستان کے عالمی سطح پر مؤثر اور بھرپور کردار کی تائید ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ امریکہ سمیت پوری دنیا مشرق وسطی میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہے۔ پاکستان کی جانب سے یہ پیشکش ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب خطہ شدید کشیدگی کا شکار ہے اور عالمی برادری
किसी मुअस्सर सालिस की तलाश में है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान का मुतवाज़िन और गैर जानिबदार मौक़िफ़ उसे इस किरदार के लिए एक मौजू इंतखाब बनाता है। अमरीकी मीडिया समेत बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के इस इक़दाम को मुस्बत अंदाज में उजागर करते हुए पाकिस्तान के मसालती किरदार को सराहा है। Let's bring you a bit of breaking news regarding the situation in the Middle East and the possibility of talks between America and Iran. A lot of speculation as to whether or not Pakistan could host those talks. Well, the Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif has just posted on the X saying Pakistan welcomes and fully supports ongoing efforts to pursue dialogue to the end of war in the Middle East. पाकिस्तान की जानिब से मेज़बानी की पेशकश उसकी सिफारती साख को मज़ीद मजबूत करेगी और उसे एक जिम्मेदार और अमन पसंद मुल्क के तौर पर उजागर करेगी। आलमी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की ये पेशकश न सिर्फ उसकी खारजा पॉलिसी की कामयाबी का मज़हर है, बल्कि आलमी सतह पर उसके मुस्बत तशख़्ख़ुस को भी मज़ीद तक़वियत दे रही है। आने वाले दिनों में इस पेशरफ्त के खित्ते की सूरत हाल पर अहम असरात मुरतब होंगे। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और मुत्तहिदा अरब अमारात नायब वज़ीर आज़म शेख इबदुल्ला बिन ज़ैद अल नाहियान ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में उभरती हुई इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म ने अमन और इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर देते हुए कशीदगी में फौरी कमी के लिए सफारतकारी को आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता करार दिया। नायब वज़ीर आज़म ने 3 पाकिस्तानी शहरियों समेत कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तान की मुस्तहकम यकजहती का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबते में रहने पर भी इत्तेफाक किया है। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार हम दुरुस्त लोगों से बात कर रहे हैं जो मुआहिदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान समझदारी का मुजाहरा कर रहा है और एटमी हथियार ना बनाने पर आमादा है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, नायब सदर जेडी वेंस और खुसूसी एलची स्टीव वटकोफ ईरान के मामले पर मुतहर्रिक हैं। आलमी मंडी तेल की कीमतें बुध के रोज तकरीबन 6% गिर गईं। ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत 5.92% कमी के बाद 98.30 डॉलर रह गई। अमरीकी मायार के तेल का मुआहिदा वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी 5.1 कमी के साथ 87.72 डॉलर पर आ गया। सदर ट्रंप ने तकरीबन 1 माह से जारी जंग के खात्मे के लिए उम्मीद का इजहार करते हुए ईरान को एक अमन मंसूबा भेजा, जबकि तेहरान ने ऐलान किया है कि वो आबनाए हुर्मुज़ से गैर दुश्मन तेल बरादर जहाज़ों को गुजरने देगा। लेबनान के जनूबी इलाके में इसराइली हमलों में कम से कम 9 अफराद शहीद हो गए, जिनमें एक कस्बा और फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप शामिल है, जबकि मुतादिद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। अतलोन कस्बे पर हमले में 4 अफराद जाँ बहक हुए और मियाँ मियाँ कैंप में अपार्टमेंट पर हमले में 2 शहीद और 4 ज़ख्मी हुए। हुबूश कस्बे में भी 3 अफराद शहीद और 18 ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज ने ज़मीनी कार्रवाई में हिज़्बुल्लाह के असलहा ज़खायर तबाह किए और फ़ज़ाई हमलों में मुतअद्दिद जंगजू शहीद हुए, जबकि हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइली और जनूबी लेबनान में जवाबी हमले किए। ताहम जानी नुकसान की इत्तला महदूद है। इसराइल का कहना है कि वो सरहदी इलाके पर दरियाए लितानी तक कंट्रोल हासिल करेगा। लेबनानी हुकाम के मुताबिक अब तक 1072 अफराद शहीद और 10 लाख से जायद बेघर हो चुके हैं। ईरानी वजारत सेहत के ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक ईरान में अब तक अमरीका और इसराइल के हमलों में 1500 से जायद अफराद शहीद और 18,551 जख्मी हो चुके हैं। लेबनान में 1087 शहीद हो चुके हैं। इसराइल ने 15 और अमेरिका ने भी अपने 15 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की है। इराक में हलाकतों की तादाद 81 है, जबकि खलीजी ममालिक कुवैत में 6, मुत्तहिदा अरब अमारात में 6, सऊदी अरब में और बहरीन में 1 शहरी जाँ बहक हुआ है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि पाकिस्तान अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए सालिसी और मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है। हम हुकूमत की तमाम काविशों में उसके साथ खड़े हैं। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मशरक़ वुस्ता की जंग हमारे दरवाजे तक पहुँच चुकी है। किसी को अंदाज़ा नहीं कि जंग से खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज हर तरह की सूरत हाल से निपटने की सलाहियत रखती है और पूरी कौम पाक फ़ौज के शाना बशाना है। पाकिस्तानी सिफारतकारी के आगे भारतीय खारजा पॉलिसी के चारों शाने चित हो गए। पाकिस्तान ने मोदी सरकार को हर महाज पर शिकस्त दे दी है। भारतीय जरीदे दी वायर ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान अहम तरीन सालिस बनकर उभरा है।
امریکہ نے بھارت کی جگہ پاکستان کی مشرق وسطی میں اہمیت تسلیم کی ہے۔ مودی سرکار کے بلند و بانگ دعوے بے نقاب ہو گئے۔ پاکستان کی عملی سفارتکاری نے بھارت کو پچھاڑ دیا۔ دوائر کے مطابق بھارت کی پاکستان کو تنہا کرنے کی حکمت عملی بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ دنیا مودی حکومت کو اسرائیل اور امریکہ کا حد سے زیادہ تابع سمجھتی ہے، جبکہ پاکستان کو واشنگٹن اور تہران دونوں کا اعتماد حاصل ہے۔ بھارتی جریدے دوائر کے مطابق امریکہ بھارت کو محض ایک کمزور کھلاڑی سمجھتا ہے اور اہم ثالثی کے لیے پاکستان پر انحصار کرتا ہے۔ پاکستان، مصر اور ترکی کے سفارتی بلاک نے بھارت کو مغربی ایشیائی قیادت سے باہر کر دیا ہے۔ چابہار پر بھارت کی اربوں کی سرمایہ کاری خطرے میں ہے، جبکہ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری نے میدان مار لیا ہے۔ مودی نے جس ملک کو غیر اہم کہا وہی آج عالمی امن کا ضامن نکلا۔ مودی کی ناکام حکمت عملی نے بھارت کو تنہا کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ سفارتکاری کے ذریعے مسائل کے حل پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مشرق وسطی سے متعلق اجلاس کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے پاکستانی مندوب نے اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے فلسطینی عوام پر اسرائیلی حملوں کی بھی مذمت کی۔ عاصم افتخار احمد نے کہا کہ اسرائیل نے غزہ پر وحشیانہ بمباری کی۔ اسرائیلی جارحیت میں خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ The Security Council has condemned all measures aimed at altering the demographic composition, character, and status of the Palestinian territory occupied since 1967, including East Jerusalem. Such measures violate international law, undermine ongoing peace efforts, run counter to the comprehensive plan, and jeopardize the prospects of achieving a just and lasting peace. The Council has also demanded that Israel immediately and completely cease all settlement activities in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, and that it fully respect all of its legal obligations in this regard. This illegal settlement policy and Israeli settlers' continuous and escalating attacks against the Palestinian civilian population, as well as the violence against Palestinian communities, including the recent killing of Palestinian children by Israeli forces, are unacceptable and must be brought to an immediate end, and we call for those responsible to be held to account. مودی سرکار کی ناقص پالیسیوں نے بھارتی عوام کو گیس اور پیٹرول کے شدید بحران کی دلدل میں دھکیل دیا۔ خلیج میں کشیدگی کے باعث پوری دنیا توانائی کے بحران کا شکار ہے، لیکن مودی سرکار کی دوغلی پالیسیوں نے بھارتی عوام کو دوبارہ پتھر کے دور میں واپس پہنچا دیا۔ متحدہ عرب امارات کے جریدہ خلیج ٹائمز نے نااہل مودی کی ناکام پالیسیز کے بھارتی عوام پر پڑنے والے منفی اثرات آشکار کر دیے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق گیس کی قلت نے بھارت کے غریب طبقے کو دوبارہ لکڑی اور کوئلے جلانے پر مجبور کر دیا ہے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق بڑی تعداد میں بھارتی عوام گیس سے محروم، جبکہ مارکیٹس میں ملنے والی گیس کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب مودی سرکار کی نااہلی اور بد انتظامی کے باعث بھارتی عوام پیٹرول کے حصول کے لیے طویل قطاروں میں لگنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ماہرین کے مطابق نااہل مودی سرکار کی ناکام پالیسیز کے باعث غریب بھارتی عوام کے لیے ایک وقت کے کھانے کے لیے چولہا جلانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ مودی حکومت کی تمام تر توجہ ایران کے خلاف اسرائیل نواز پالیسیز پر مرکوز رہی، جس کے باعث آج پورا بھارت گیس اور پیٹرول کے بحران سے دوچار ہے۔ ناظرین، نااہل مودی کی ناکام اور منافقانہ خارجہ پالیسی پر اپوزیشن لیڈر بھی سیخ پا ہو گئے ہیں۔ خلیجی جنگ پر بھارتی وزیر اعظم کی مجرمانہ خاموشی اور ناقص سفارتکاری پر پورے بھارت کو اندرونی اور بیرونی سطح پر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے ناکام اور دوغلی خارجہ پالیسی پر نااہل مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بھارتی خارجہ پالیسی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نااہل مودی بھارتی خارجہ پالیسی کو اپنی ذاتی پالیسی میں بدل چکے، جو اب دنیا میں مذاق بن کر رہ گئی ہے۔ امریکی صدر بھارتی وزیر اعظم کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر اگر ہمارا وزیر اعظم کمپرومائزڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت کی خارجہ پالیسی بھی کمپرومائزڈ ہے۔ مودی بھارت کے مفاد میں کام نہیں کریں گے، بلکہ صرف وہ کریں گے جو امریکہ اور اسرائیل کہے گا۔ عالمی ماہرین کے مطابق راہل گاندھی کا مودی کو کمپرومائزڈ کہنا واضح اشارہ ہے کہ بھارت کی نام نہاد خود مختار خارجہ پالیسی صرف بیرونی طاقتوں کے اشاروں پر چل رہی ہے۔ بھارتی معیشت کا بڑا انحصار خلیجی ممالک پر ہے، لیکن مودی نے ذاتی مفادات کے لیے ایران مخالف اسرائیلی اتحاد کا حصہ بن کر عوامی مفاد کو پس پشت ڈال دیا۔
अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दी की हिमायत और इंतहा पसंदाना पॉलिसियों के सबब दुनिया भर के लिए नाकाबिल कबूल हो गई है। तालिबान रजीम के जाबराना कवानीन अफगान शहरियों के बुनियादी हुकूक और मुस्तकबिल के लिए संगीन खतरा बन गए हैं। अमरीकी थिंक टैंक फॉरेन पॉलिसी इन फोकस के मुताबिक तालिबान रजीम के सख्त गिर निज़ाम और आलमी सतह पर तन्हाई ने अफगान रियासत की कानूनी हैसियत और शहरी हुकूक को शदीद खतरात से दोचार कर दिया है। अफगान तालिबान रजीम का खुद मुख्तारी का दावा महज एक ढोंग, आलमी सतह पर एक मुल्क के सिवा किसी ने उसे बाकायदा तस्लीम नहीं किया। माहिरीन के मुताबिक तालिबान रजीम की शिद्दत पसंद और गैर जमहूरी पॉलिसीज के बायस अफगानिस्तान आलमी सतह पर तनहा और इक्तसादी और इंसानी बहरान का शिकार है। अफगान तालिबान की अलकायदा और फितनल खवारिज यानी TTP जैसे ग्रोहों की पुष्पनाही महज एक दाखिली मामला नहीं है बल्कि पूरे खित्ते के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है और 100 इंडेक्स इस वक्त 3,460 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,57,428 पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालिसी की पेशकश के बाद कशीदगी के जल्द खात्मे की उम्मीद जाहिर की जा रही है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखने में आ रहा है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सनती और तिजारती ताल्लुकात के नए मरहले का आगाज हो चुका है। SIFC पाकिस्तान की इक्तिसादी और सनती ताउन के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान और चीन की सनत, ज़राअत और मादनी शोबाजात में शराकतदारी नए मरहले में दाखिल हो गई है। हाल ही में चीनी काउंसिल जनरल सिन जॉन ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अहम दौरा किया। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सेहगल ने चीनी काउंसिल जनरल सिंजियान के दौरे को खुशाइन करार दिया। सदर लाहौर चैम्बर के मुताबिक ये दौरा CPEC के दूसरे मरहले में प्राइवेट सेक्टर के साथ B2B मुलाकातों और जॉइंट वेंचर्स के लिए अहम है। इस दौरे के दौरान IT, ज़राअत, मादनी वसाइल और सनती शुबाजात की तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर चैम्बर लैंग्वेज बैरियर को कम करने और चीनी ज़ुबान में महारत रखने वाले प्रोफेशनल्स को तरबियत देने के लिए कोशा है। मौसर मवासलात और चीनी ज़ुबान की मालूमात बढ़ाने से दो तरफ़ा सरमायाकारी और तिजारती मौक़े में इजाफा होगा। SIFC पाकिस्तान की इक़्तिसादी शराकतदारियों को मुस्तहकम करने और मुश्तरका तरक्याती मंसूबों की कामयाबी में भरपूर मदद फराहम कर रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तान सारिक हुसैन की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया गया। स्पेन में पाकिस्तानी सफ़ीर ज़हूर अहमद और कौंसल जनरल बार्सिलोना ने ब्रीफिंग में बताया कि तमाम इदारे पाकिस्तानियों को ज़रूरी दस्तावेज़ात की बरवक्त दस्तियाबी के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। करैक्टर सर्टिफिकेट और पासपोर्ट के इजरा में तेज़ी आई है। पाकिस्तानी सफारतखाना और कौंसल जनरल अब तक 10,000 अफराद को अथॉरिटी लेटर जारी कर चुका है। सालिक हुसैन ने कहा कि स्पेनिश स्कीम से 15,000 पाकिस्तानी फ़ायदा उठाएंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट तरजीही बुनियादों पर जारी किए जा रहे हैं। किसी मुजरिम या मतलूब मुलजिम को हरगिज़ स्पोर्ट जारी ना की जाए। वज़ीर दाखिला ने सफारतखाने को पासपोर्ट सेक्शन के लिए इजाफी अमला फराहम करने की हिदायत कर दी। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास में गैर मुल्की कार्गो की ट्रांसशिपमेंट बढ़ाने की हिकमत अमली का जायजा लिया गया। इजलास में बंदरगाहों पर सहूलियात बढ़ाने और पाकिस्तान को इलाकाई ट्रांसशिपमेंट मरकज़ बनाने के इक़दाम पर गौर किया गया। वफाकी वज़ीर ने बताया कि कराची पोर्ट पर ट्रांसशिपमेंट जहाज़ों के लिए माली मुराद मुतारिफ करवाई गई हैं और खुश्क बल्क कार्गो पर पोर्ट चार्जेस में 60% तक रियायत दी गई है। उन्होंने कारोबार दोस्त माहौल और मुसाबकाती बंदरगाही निज़ाम के जरिए तिजारती मौक़े बढ़ाने पर जोर दिया। इजलास में बताया गया कि ईद के दौरान भी बंदरगाही ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहा और 15,000 कंटेनर्स और 22 जहाज़ हैंडल किए गए। वज़ीर ने कहा कि बहरी तिजारत के फ़रोग़ के लिए तरीक़ाकार सादा बनाया जा रहा है और कस्टम्स और टर्मिनल ऑपरेटर्स चार्जेस में तवाज़ुन लाएं। सिंध के सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जिल इनाम मेमन ने अपने एक बयान में कहा है कि अवामी ज़रूरियात और ईंधन के ज़खायर को महफूज बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। अगर वफाकी हुकूमत लॉकडाउन का फैसला करती है तो सिंध हुकूमत इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात के पेश नज़र सिंध काबीना ने 3 माह की तनख्वाह न लेने का फैसला किया है। वफाकी हुकूमत के फैसलों की हर सतह पर हिमायत जारी रखी जाएगी। अगर वफाकी हुकूमत को मज़ीद ताउन दरकार हुआ तो सिंध हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। शर्जिल इनाम मेमन ने कहा कि अवाम के ताउन से ही ईंधन की बचत और तवानाई के ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। लोधरा आदम वाहन तेजगाम एक्सप्रेस हादसे के 12 घंटे बाद कराची से पिंडी जाने वाला ट्रैक बहाल कर दिया गया है। रावलपिंडी से कराची ट्रैक की बहाली के लिए काम तेजी से जारी है। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं लोधरा से नुमाइंदा PTV न्यूज़ अब्दुल्ला डाहा। जी अब्दुल्ला, क्या अपडेट्स हैं? लोधरा के करीब आदावान रेलवे स्टेशन के मकाम पर गुज़िश्ता रात पेश आने वाले अफसोसनाक तेजगाम ट्रेन हादसे के 12 घंटे बाद अप साइड ट्रैक बहाल कर दिया गया है। ज़करिया एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस और दीगर ट्रेनों के मुसाफिर
रेलवे स्टेशन लोधरा पर रुके हुए हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ रात से जारी हैं, जिनमें रेस्क्यू टीमें, रेलवे हुकाम और मकामी इंतज़ामिया ने भरपूर हिस्सा लिया। जख्मी मुसाफिरों को बर वक्त निकाल कर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लोधरा में मुंतकिल किया गया। इंशाल्लाह हमारा ये आपका ट्रैक बहाल हो गया। अभी आपके सामने हज़ारा एक्सप्रेस हमने पास कर दी है, सेफ एंड साउंड आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह डाउन का ट्रैक भी घंटे डेढ़ घंटे तक हम बहाल हो जाएगा हमारा। वज़ीर रेलवे और आला हुकाम ने वाक़े का सख्ती से नोटिस लेते हुए फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है और मुतलका इदारों को हदायत जारी की है कि ज़ख्मियों को हर मुमकिन बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। इसके साथ साथ हादसे में मुतासर होने वाले मुसाफिरों और उनके अहल खाना की हर मुमकिन मदद यकीनी बनाने की भी हदायत दी गई है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। नाज़रीन, पेरिस के नवाही शहर कराई में पाकिस्तानी नयाद उमर याकूब पहले पाकिस्तानी मेयर मुंतखब हुए हैं। उमर याकूब फ्रांस की तारीख के पहले पाकिस्तानी नयाद मेयर बने हैं। ये फ्रांस में मुकीम तमाम पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्रिया लम्हात हैं। वो फ्रांस में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में 51.19% वोट हासिल करके मेयर बने हैं। पाकिस्तानी कम्यूनिटी की समाजी और सियासी शख्सियात ने उमर याकूब को मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करते हुए इस कामयाबी को फ्रांस में पाकिस्तानी नयाद अफराद के लिए एक बड़ा फ़ख्र और एजाज़ करार दिया है। उमर याकूब कराई के सिटी से मेयर मंतखब हुए, जिस पर हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं और ये हमारी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र का बायस है कि हमारे नौजवान आगे बढ़ रहे हैं और फ्रांस में एक्टिव हिस्सा ले रहे हैं। उमर याकूब साहब को पहला पाकिस्तानी मेयर मुंतखब होने पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और तमाम पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद किया उन्होंने। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं अपनी तरफ से और पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो फ्रांस में मुकीम है उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। हमें इंतहाई दिली मसरत हुई है कि वो आगे चलकर पाकिस्तान के लिए और फ्रांस के लिए और पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए बहुत काम करेंगे। उमर याकूब साहब को, जो कि पाकिस्तानी नजाद पहली मरतबा फ्रांस में मेयर बने हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आज से 31 मार्च तक गरज चमक के साथ बारिशों, तेज हवाओं और जालाबारी के इम्कान के पेश नज़र तमाम सूबाई और ज़िले इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। NDMA के मुताबिक आज से बलूचिस्तान के जनूब मगरबी इलाकों से मगरबी हवाओं का एक ताकतवर सिलसिला दाखिल होगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, लाहौर और दीगर वस्ती और शिमाली अजला में 25 और 26 मार्च को बारिश मुतवक्की है, जबकि 28 से 30 मार्च के दौरान बारिशों की शिद्दत में इजाफे और चंद मकामात पर जालाबारी की तवक्को है। उधर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चित्राल, स्वात, मानसेरा, पेशावर और DI खान समेत मुख्तलिफ अजला में 25 से 30 मार्च तक वक्फे वक्फे से बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्की है। कोयटा, गवादर, कल्लात समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला और कराची, हैदराबाद, सक्कर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 24 से 29 मार्च के दौरान आंधी और बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी 25 से 30 मार्च तक बारिश, बर्फबारी और जालाबारी की पेशगोई की गई है। NDMA ने खबरदार किया है कि तेज़ हवाओं और आसमानी बिजली के बायस कमज़ोर तामीरात, दरख्तों और बिजली के खंभों को नुकसान पहुँच सकता है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिशों की वजह से सड़कें फिसलन का शिकार हो सकती हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने का खदशा है। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और दौरान ड्राइविंग इंतहाई एहतियात बरतें। तेज़ हवाओं और तूफ़ान के दौरान बिजली की तनसीबात और कमज़ोर इमारतों से दूर रहें। सयाह शिमाली इलाका जात का रुख करने से कबल मौसमी सूरत हाल से आगाही रखें। बर वक्त मालूमात के लिए NDMA की ऐप पाक NDMA अलर्ट इस्तेमाल करें। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में कहीं कहीं, जबकि इस्लामाबाद, कश्मीर और बालाई सिंध में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान बाज़ मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है। मुल्क के दीगर इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहा। ताहम शिमाली जनूबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। और अब गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर।
नाज़रीन, आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर चीन का दारुलहुकूमत बीजिंग रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 206 रिकॉर्ड किया गया। दूसरे नंबर पर भारतीय दारुलहुकूमत दिल्ली रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 177 रहा। चीन का शहर वुहान तीसरे नंबर पर रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 रिकॉर्ड किया गया। चौथे नंबर पर बांग्लादेश का दारुलहुकूमत ढाका रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 169 रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान का शहर लाहौर पांचवें नंबर पर रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 164 रिकॉर्ड किया गया। जबकि छठे और आखिरी नंबर पर सऊदी अरब का दारुलहुकूमत रियाज रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 137 रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया कदीर आपका। नाज़रीन, कुछ और खबरें शामिल करेंगे। दुनिया भर की तरह कनाडा के शहर वैंकूवर में भी यौम पाकिस्तान के मौके पर काउंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए तमाम एक पुरवकार परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। वैंकूवर में यौम पाकिस्तान के मौके पर तकरीब का आगाज़ कौमी परचम लहराने और कौमी तराने से हुआ। सदर ममलकत, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के पैगाम भी पढ़कर सुनाए गए। कौंसल जनरल शहजाद हुसैन ने अपने खिताब में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल की क़यादत को ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि करारदाद लाहौर बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अहम संग मील थी। तकरीब के इख्तिताम पर केक काटा गया। शुरका ने पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी की। यौम करारदाद पाकिस्तान के मौके पर कनाडा के शहर कैलगरी में पाकिस्तान कनाडा कल्चरल एसोसिएशन के ज़रिए तमाम एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत करते हुए वतन से मोहब्बत का इजहार किया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और कौमी तराने से हुआ। मुकर्रीन ने क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद और उसकी अहमियत को उजागर किया और नौजवानों पर जोर दिया कि वो अपनी सकाफत और शनाख्त को बरकरार रखते हुए माशरे में मुस्बत किरदार अदा करें। तकरीब में सकाफती रंग भी नुमायां रहे, जहाँ मिली नगमों ने हाजरीन का जोश बढ़ा दिया और हॉल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। ये तकरीब न सिर्फ कम्युनिटी के इत्तेहाद का मजहर बनी, बल्कि नई नस्ल को अपनी जड़ों से जोड़ने का भी जरिया साबित हुई। मुस्लिम लीग नून स्पेन की जानिब से यौम पाकिस्तान के मौके पर बार्सिलोना में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अफवाज पाकिस्तान को बुनियानुम मरसूस में कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब की सदारत मुस्लिम लीग नून स्पेन के सदर हाजी राजा असद हुसैन ने की। शुरका ने केक काटा और मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की। मुकर्रीन ने करारदाद पाकिस्तान की तारीखी अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि 23 मार्च 1940 ने तरीके पाकिस्तान को नई समत दी, जो बिलाखिर क़याम पाकिस्तान पर मुतंज हुई। तकरीब में शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से महफिल को गरमाया और वतन से मोहब्बत के जज्बात का भरपूर इजहार किया। उज़्बेकिस्तान में नौरोज़ की रंगारंग तकरीबात अपने रूज पर हैं, जहां बहार की आमद को रिवायती जोश व खरोश के साथ खुशामदीद कहा जा रहा है। ताशकंद और ख्वारज़म समेत मुख्तलिफ शहरों में सकाफती मेलों, मूसीकी और रिवायती खेलों का इनेकाद किया जा रहा है। उनके स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के पाकिस्तानी और दीगर बैनुल अक़वामी तलबा भी इन तकरीबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अवामी मकामात को खूबसूरती से सजाया गया है और रिवायती खानों और दस्तकारी के स्टॉल्स लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। हुकूमत की जानिब से आम तातील के ऐलान के बाद शहरी भरपूर अंदाज में जश्न मना रहे हैं और नौरोज़ एक बार फिर सकाफत, रिवायत और कौमी यकजहती की खूबसूरत तस्वीर पेश कर रहा है। नाज़रीन, लंदन में राहत फ़तेह अली खान और उनके बेटे शाह समान खान को बरतानवी पार्लियामेंट ने खुसूसी एजाज़ से नवाजा है। तकरीब का इनेकाद पाकिस्तानी और बांग्लादेशी फनकारों ने किया, जिसमें लॉर्ड तारिक अहमद, मोहम्मद यासीन और अफजल खान समेत बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। ये एजाज़ रॉयल एल्बर्ट हॉल में शानदार परफॉर्मेंस के बाद दिया गया। राहत फ़तेह अली खान का कहना था कि उनके लिए बड़े फ़ख्र की बात है और ये कामयाबी वालिदैन की दुआओं और मेहनत का नतीजा है। उन्होंने जल्द बंगाली गाना रिलीज़ करने का ऐलान भी किया है। स्मिथ भी तो है आने वाला और मुल्तान का भी कमबैक है होने वाला। होने वाला वाला गारा होने वाला होने वाला वाला गारा होने वाला वाला गारा होने वाला होने वाला वाला गारा होने वाला। खेलों की खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 11 होने वाला है और आला होने वाला है। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के आगाज में एक दिन बाकी रह गया है। शायकीन के बगैर वॉच फ्रॉम होम मैचेस कल से 3 मई तक खेले जाएंगे। इवेंट्स के तमाम 44 मैचेस लाहौर और कराची में खेले जाएंगे। इफ्तिताही मैच हैदराबाद किंग्समैन और लाहौर कलंदर्स के दरमियान लाहौर में खेला जाएगा।
PSL 11 के तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। PSL 11 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी है। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर ने किंग्स को ज्वाइन कर लिया। फ्रेंचाइज इंतजामिया ने वार्नर का परतफाक इस्तकबाल किया। हैदराबाद किंग्स मैन के कप्तान मार्नस लबुशेन भी लाहौर पहुंच गए। लबुशेन ने स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है। रावलपिंडीज के बॉलिंग कोच कॉर्टनी वॉल्श ने स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। बांग्लादेशी खिलाड़ी रिशाद हुसैन भी टीम का हिस्सा बन गए हैं। PSL 11 कल से शुरू हो रहा है। इवेंट के लिए टीमों की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। तमाम 8 फ्रेंचाइजीज के खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग सेशंस जारी रखे हुए हैं। क्रिकेटर्स नेट प्रैक्टिस के साथ फील्डिंग और कैचिंग पर भी भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। बैटर्स चौकों और छक्कों से घरों में बैठे शायकीन का दिल लुभाने के लिए तैयार हैं, जबकि बॉलर्स भी विकेटें उड़ाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। PSL 11 के एडिशन में मुतादिद अनकैप्ड खिलाड़ी भी एक्शन में नजर आएंगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के कप्तान फरहान यूसुफ पेशावर ज़ल्मी, शाहज़ेब खान और अब्दुल्ला फजल रावलपिंडीज, साकिब खान क्वेटा ग्लैडिएटर्स और समीर मिन्हास इस्लामाबाद यूनाइटेड में शामिल होकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए गेम चेंजर्स बनने के लिए पुरुमीद हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। शायकीन की दिलचस्पी के लिए PTV ने माहिरीन का एक बेहतरीन पैनल तश्कील दिया है, जो प्री और पोस्ट मैच के अलावा इनिंग्स ब्रेक में भी दिलचस्प तज्जिया और तबसरे पेश करेंगे। फैंस कमेंट्री बॉक्स से हर गेंद के साथ जोश, हर चौके छक्के पर शोर और हर विकेट पर तफसीली तज्जिया भी PTV स्पोर्ट्स पर देख सकेंगे। PSL 11 का हर मोमेंट है वायरल होने वाला, 11 होने वाला। अब बात कर लेते हैं साइकिलिंग के हवाले से। हिस्पानवी साइकिलिंग टूर वोल्टा कैटलोनिया का दूसरा मरहला डेनमार्क के मैग्नस कोट नेल्सन के नाम रहा। रेस का दूसरा मरहला फगरिस से बेनविस तक 167.4 किलोमीटर पर मुश्तमिल था। रेस के दौरान साइकिलिस्ट को पहाड़ी इलाके में चढ़ाइयों और उतराइयों पर भी अपनी हिम्मत, बर्दाश्त और महारत का मुजाहरा करना पड़ा। कोट नेल्सन ने आखिरी लम्हात में ज़बरदस्त रफ्तार दिखाते हुए हरीफ साइकिलिस्ट को मामूली फ़र्क से शिकस्त दी। मैग्नस नेल्सन ने मुकर्रर फासला 3 घंटे 45 मिनट और 28 सेकंड्स में तय करके पहली पोजीशन हासिल की। फ्रांस के नोआ इसिडोर ने दूसरी पोजीशन हासिल की। इटली के फ्रांसेस्को बोसातो ने पोडियम मुकम्मल किया। पहले मरहले के फातेह फ्रांसीसी साइकिल सवार गुडोन डोरियान की मजमून बरतरी बरकरार है। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 11 जून से होगा। वर्ल्ड टूर पर मौजूद ट्रॉफी लॉस एंजल्स पहुंच गई है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स में होने वाली नुमाइश में इटली के लेजेंडरी फुटबॉलर अलेसैंड्रो डेल पेरो ने भी हिस्सा लिया और शायकीन के साथ यादगार लम्हात गुजारे। ट्रॉफी टूर का मकसद दुनिया भर में फुटबॉल के शायकीन को इस तारीखी इवेंट से जोड़ना और जोश खरोश बढ़ाना है। मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका की मुश्तरका मेज़बानी में होने वाले मेगा इवेंट की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इफ्तिताही मैच मेक्सिको सिटी में मेज़बान मेक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सरमाई पैरालंपिक गेम्स 2026 में शिरकत करने वाले एथलीट्स के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की। तकरीब में ज़ेलेंस्की ने पैरा खिलाड़ियों और कोचेस को रियासती एजाज़ से नवाजा। यूक्रेनियन सदर ने मिलान में होने वाले मुकाबलों में 19 तमगे जीतने पर खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा और उसे अपने मुल्क के लिए बड़ी शुक्रगुजारी और बड़े फ़ख्र का बायस करार दिया। नाज़रीन, खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। नाज़रीन, खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।